Next question is by Saurabh from Monica Mountain. It's on UCCA. Good evening, ma'am. First of all, thank you for giving me the opportunity. Ma'am, along with the hijab controversy, the demand of uniform civil code has also arisen. So I have two questions regarding it. The first one is, how much challenging would it be in a country like India to meet standards of uniform civil code? The second is, if uniform civil code does get implemented, will it affect essential guaranteed practices of Sikhism like wearing turban, which is enshrined as a fundamental right under Article 25? If not, then how can we harmonize uniform civil code and the essential religious practices? Okay. First of all, we already have uniform civil code in India. You only want uniform family code. We have uniform criminal law in India. We have uniform civil law in India. All we want is uniform family law. यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, मालूम है, कोई भी किसी का मर्डर करता है, कोई भी चीज चोरी करता है, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो कोर्ट विल नॉट सी हिज रिलीजन, वही सेम पनिशमेंट मिलेगी. वी हैव यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है. कोई किसी somebody enters into a contract, somebody enters into a contract for sale or purchase of property, you have uniform civil law. The court will not see their religion. They can sell and they can purchase a property, they can have their property on rent, they can enter into a contract, they can bid for a tender. Religion will not be seen. But we don't have a uniform family law. And only 4 things in that: the marriage laws, the divorce laws, the succession laws, and adoption laws. सिर्फ इन चारों में यूनिफॉर्मिटी लानी है, बाकी वी हैव यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर. किन चारों में? मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन. शादी हुई, शादी कैसे? उसके बाद डिवोर्स होगा, डिवोर्स कैसे होगा? बच्चा नहीं हुआ, बच्चा एडॉप्ट करना है, बच्चा एडॉप्ट कैसे होगा? और बच्चा हो गया तो अपने मरने के बाद बच्चे को हमारी संपत्ति कैसे मिलेगी? उसके उत्तराधिकार का, उसका सक्सेशन. केवल इन 4 चीजों में सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं. उनमें ऐसा लॉ लाना है कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है ना लेडीज के अगेंस्ट में, वो खत्म हो जाए. बस आप टर्बन पहनो, आप साड़ी पहनो, आप सूट पहनो, आप जीन्स पहनो, कोर्ट के पास टाइम नहीं है, वो इंटरफियर नहीं करेगा, ना इंक्लिनेशन इंटरफियर करने की. सिर्फ और सिर्फ एनी प्रैक्टिस इन एनी रिलीजन which is discriminatory against women, court wants to remove that practice. This is uniform civil code. Article 44 है ये, the active principles of state policy, which says state shall endeavor to secure for all its citizens uniform civil code. But whenever you read Article 44, always read it with Article 37, because Article 37 says that all these directive principles, including uniform civil code, are mandatory, are fundamental in the governance of the country. The state, that is the government, has to abide by these principles in formulation of laws. तो कोई भी कानून सरकार बनाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनको उसको इंप्लीमेंट करना ही होगा. अब अगर मैं 2 मिनट में अपनी बात बताऊं, हुआ क्या कि शुरू से आप देखें, मतलब अगर मैं कहूं 2000 साल से देखें, यहां पर क्या, यहां पर जो वैदिक काल से अगर हम देखते हैं तो वैदिक काल से यहां पर जो धर्मशास्त्र थे वही कानून थे. धर्मशास्त्र कानून थे. फिर शक आए, हूण आए, वो भारत में ही समा गए. फिर जब मुगल आए तो मुगलों की तलवार ही उनका कानून था. उसके बाद जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब को लगा कि नहीं, यहां पर एक कानून होना चाहिए. तो उन्होंने दुनिया भर के लगभग 500 से अधिक मुस्लिम स्कॉलर्स को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि यू सिट फॉर इयर्स टुगेदर, आप बैठिए
और आप यहां पर इस्लामिक कोड फॉर साउथ एशिया बनाइए. For years together, these more than 500 Muslim scholars, they sat and they formulated an Islamic code of conduct for South Asia. जिसको आप, जिसमें उसके 4 बेसिस थे. पहला उसका, जैसे मैंने कहा, कुरान बेसिस था, हदीस बेसिस था उसका, और जितने भी ओपिनियंस थे मुस्लिम स्कॉलर्स के, वो बेसिस थे इसके. तो ये शरिया लॉ हम कहते हैं हिंदुस्तान में है. ये फतवा आलमगिरी जो इन्होंने मिलके ये लगभग 30 वॉल्यूम्स का इस्लामिक कोड फॉर साउथ एशिया बनाया औरंगजेब के टाइम पर. फतवा आलमगिरी, यही कानून है हिंदुस्तान में, सिविल लॉ. लेकिन ये क्रिमिनल लॉ शरिया का नहीं लेके आ पाए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ फ्रॉम द अरेबिक कंट्रीज तो वेरी ब्रूटल. आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ. किसी विमेन का रेप हो जाए तो 4 मेल विटनेसेस चाहिए. वो प्रूव नहीं कर पाई तो एडल्ट्री कहकर कि उसने एडल्ट्रस रिलेशनशिप थे, उसको मार दिया जाएगा, मार मारकर खत्म कर दिया जाएगा. तो क्रिमिनल लॉ तो नहीं आया शरिया का, लेकिन ये फतवा आलमगिरी जो 500 मुस्लिम स्कॉलर्स ने सिविल लॉ बनाया, ये यहां हिंदुस्तान में लागू हो गए. उसके बाद ब्रिटिशर्स आए. तो ब्रिटिशर्स ने कहा, वी आर हियर टू जस्ट रूल, वी विल नॉट इंटरफियर इन एनीबॉडीज पर्सनल लॉ. ना हिंदू पर्सनल लॉ में, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ में वी विल नॉट इंटरफियर. लेकिन हुआ क्या, ये जो हिंदू रिलीजन से आवाज आनी शुरू हो गई. फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन राय खड़े हो गए. उन्होंने कहा, विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल थे, उनसे कहा कि ये सती एबोलिशन एक्ट लेकर आइए, सती को एबॉलिश कीजिए. इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस हियर. तो सती एबोलिशन एक्ट आ गया 1856 के आसपास. सती एबोलिशन एक्ट आ गया. फिर ईश्वर चंद विद्यासागर खड़े हुए. उन्होंने कहा कि जो लड़कियां विधवा हो जाती हैं, उन लड़कियों को कोई अधिकार नहीं रहता है, तो जो विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आओ. तब फिर गवर्नर जनरल से बात की, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया. उसके बाद शारदा एक्ट आ गया, देशमुक्त एक्ट आ गया, जिसमें लगातार हिंदू सोसाइटी से आवाज आई. वहां के रिफॉर्मर्स खड़े हुए. उन्होंने कहा, ये एक्ट लेकर आओ, लड़कियों की जो एज है ये बढ़ाओ, मैरिज की एज. तो 14 से 18 की गई शारदा एक्ट में. उसके बाद हिंदू विडोज को और आप रिफॉर्म करके उनको और राइट्स दीजिए, लड़कों के बराबर राइट दीजिए. तो देशमुख एक्ट आया 1937. तो लगातार वहां समाज से आवाज आई, रिफॉर्मर्स खड़े हुए, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर रिफॉर्म के एक्ट्स आते गए. लेकिन उसी समय ऐसा लगा, कुछ जो उस समय के, मैं कह सकती हूँ, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी. उन्होंने कहा कि यहां सब रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस्लामिक लॉ है उसको भी चेंज कर देंगे. तो वो लोग खड़े हुए, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर जोर डाला और 1937 में शरीयत एक्ट पास कर दिया. 1937 में वो एक्ट क्या था, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937. गूगल कीजिए. 3 पेजेस का एक्ट है, 3 पेजेस. 6 सेक्शंस का एक्ट है, 6 सेक्शंस. और सेक्शन 2 कहता है, ऑल मुस्लिम्स शैल बी गवर्न्ड बाय शरीयत. दैट इज इट. क्या करोगे तो क्या पनिशमेंट होगी, कंपाउंडेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, अपील कहां जाएगी, कुछ नहीं. तो वो रेजिस्टेंस जो रही ना, दैट डू नॉट रिफॉर्म द इस्लामिक लॉ, वो रेजिस्टेंस लगातार आज तक बनी हुई है. यहां जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, he wanted reformation and having one law for the nation. He said we must have uniform civil code. But उस समय the first prime minister जो बने नेहरू जी, उन्होंने कहा the time is not ripe enough, क्योंकि उसी समय भारत आजाद हुआ था, उसी समय 2 देश बने थे, उस समय क्योर्स का माहौल था, सोशल हार्मनी इतनी ऐसे नहीं थी. He said time is not ripe. तो उस समय 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया, और 1956 में आप देखिए हिंदू कोड बिल लाया गया. दे चेंज्ड हिंदू रिलीजन, दे रिफॉर्म्ड हिंदू रिलीजन, दे कोडिफाइड हिंदू रिलीजन. बट टच मी नॉट की पॉलिसी इस्लामिक लॉ में बनी रही. 1955 में
इसेंशियल प्रैक्टिसेस भी हिंदू रिलीजन की चेंज की गई। जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप देखिए, हिंदूज में जो मैरिज, इट वाज अ संस्कार। टुडे आल्सो 16 संस्कारों में से एक संस्कार, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज में, हिंदू रिलीजन में, यू कैन एंटर इनटू अ मैरिज, यू कुड नॉट हैव गॉन आउट ऑफ अ मैरिज। 7 जन्मों का संस्कार कहते हैं वो था। लेकिन 1956 के हिंदू मैरिज एक्ट को जो चेंज किया गया, उसमें डाइवोर्स का प्रावधान लाया गया। डाइवोर्स वाज नेवर देयर। आप बताइए, डाइवोर्स का हिंदी नाम बताइए। तलाक तो उर्दू नाम हो गया, इंग्लिश में डाइवोर्स हो गया, हिंदी नाम बताओ क्या है? देयर वाज नो डाइवोर्स। पहली बार 1956 में हिंदू रिलीजन में इसको चेंज किया गया, इसमें डाइवोर्स लाया। फिर हिंदू आदमी भी एक से अधिक शादियां कर सकता था। अपने दादा नाना को देख लो, कई लोगों की, उनकी एक से अधिक शादियां हुई हैं। 1956 से पहले हिंदू आदमी भी 1, 2, 3 शादियां कर सकता था। स्टॉप लगा दिया गया 1956 में। हिंदू आदमी एक से अधिक शादी करेगा तो जेल में जाएगा। आगे आईपीसी का 494 बाइगेमी, इफ यू मैरी ट्वाइस यू विल बी जेल्ड, उसको जेल दे दी गई। ऐसे हिंदू सक्सेशन एक्ट तो 2004 तक अमेंड होता गया, सेक्शन 6 कि दादे की प्रॉपर्टी में पोते का हक था, पोती को भी हक मिलेगा। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आया और हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया। ये चारों एक्ट्स आए, हिंदू रिलीजन वाज नेवर द सेम अगेन। उस समय भी बहुत हाहाकार मचा। सब लोगों ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा मैं साइन नहीं करूंगा। How can you? You are not even talking to the stakeholders. You are totally changing the Hindu religion, Hindu law. खूब वहां बात हुई, लेकिन लॉ चेंज कर दिया गया। और अंबेडकर जी ने कहा कि when you are having a uniform law and you are changing and codifying the law for 80% of the population, why not for 20% of the population? पर वो नहीं किया गया। टच मी नॉट पॉलिसी टुवर्ड्स इस्लामिक। हिंदू लॉ लगातार चेंज होता गया। उसके बाद क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, अगर मैं 2 मिनट में और बताऊं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी क्रिश्चियंस थे और क्रिश्चियंस का भी वो रिलीजन था, तो ब्रिटिशर्स ने अपने यहां जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए थे, वो चारों लॉज क्रिश्चियंस के लिए भी ले आए। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में अडॉप्शन नहीं होता, वो सिर्फ हिंदूज में ही होता है। पर अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उन्होंने अपील की तो अडॉप्शन के राइट्स दे दिए गए हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। पर क्रिश्चियंस के लिए भी सारे लॉज ब्रिटिशर्स लेकर आए। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के आसपास, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865, और लगातार पिटिशंस फाइल की क्रिश्चियंस से सुप्रीम कोर्ट में कि क्या बात है, जो हिंदूज हैं वो 1 साल वेट करते हैं डाइवोर्स फाइल करने के लिए, हम क्यों 2 साल तक वेट करें, सेम करो। तो जस्टिस विक्रमजीत ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लेकर आते। तो टाइम एंड अगेन कोर्ट्स हैव सेड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। तो यहां क्रिश्चियन लॉ रिफॉर्म हुआ, हिंदू लॉ टोटली रिफॉर्म, टोटली कोडिफाइड हुआ, पर मुस्लिम लॉ नहीं हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। एक हेजिटेशन रही उसको रिफॉर्म करने की। और वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सर भी अभी कह रहे थे, नरसूअप्पा माली की जजमेंट, जो कहते ना सिर मुंडाते ही ओले पड़े। जैसे ही आजादी आई और तभी पाकिस्तान बन के हटा था, सोशल डिसहार्मनी थी। 1952 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, नरसूअप्पा माली, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसूअप्पा माली का केस है। उसने क्या कहा, आदमी ने 2 शादियां कर ली, हिंदू लड़का था, उसको कहा तेरे को जेल होगी। अब कहता मुझे जेल क्यों हो गई, अगर इस्लाम में 1 से ज्यादा शादी अलाउड है और मेरी जो पहली पत्नी है उससे मेरी बेटी है, मेरा बेटा है नहीं, और हमारे यहाँ पर बेटा ही पिंडदान कर सकता है मरने के बाद, और पिंडदान मेरे रिलीजन का अभिन्न अंग है। बेटा नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा, तो मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दो, वरना जो इस्लाम है उसमें दोनों 1 से ज्यादा शादियां बंद करो। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। उनको जो चीज अलाउड है मुझे अलाउड क्यों नहीं है, मुझे अलाउ नहीं करे उनको भी अलाउ नहीं करे। एंड वी हैड वंडरफुल जजेस, वेरी प्रोग्रेसिव जजेस। पर कई बार प्रोग्रेसिव जजेस भी ऐसी ऐसी जजमेंट दे देते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ना उस रिलीजन में 30 साल पीछे छूट जाती है। वी हैड MC छागला जी, आई थिंक अदर जज वाज हिदायतुल्लाह जी, वंडरफुल जजेस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो नरसूअप्पा माली ने कही, उसने कहा कि आर्टिकल 13 कहता है कि एनी प्रैक्टिस
which existed before the constitution came into being and which is in violation of fundamental rights has to go. तो आप ये जो प्रैक्टिस है 110 शादियों की, हटाओ इसको आप, क्योंकि आर्टिकल 13 कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, विमेन के अगेंस्ट है, हटाओ इस प्रैक्टिस को। अब कोर्ट्स तभी भारत आजाद हुआ था, अभी शायद भारत तैयार नहीं था या जजेस तैयार नहीं थे या सरकार का प्रेशर था, गॉड नोस क्या था, मुझे नहीं, आई वाज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम। लेकिन जो जजमेंट आई, वो जजमेंट क्या आई, जिस सर ने भी बताया कि आर्टिकल 13 में जो पर्सनल लॉज हैं, दे आर नॉट लॉज एज पर आर्टिकल 13। यानी सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। पर पर्सनल लॉज को प्रोटेक्शन मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई कि इन पर्सनल लॉज को नहीं छेड़ा जाएगा। कोई भी मुस्लिम विमेन अगर कोर्ट में जाती, कोर्ट कहते ना पर्सनल लॉ का मामला, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। 35 साल लग गए, शाहबानो आई, मेंटेनेंस के केस में आर्ग्यू किया, वो एक पूरा बवाल मचा। फिर शायरा बानो आई अभी, जिसने कहा कि ट्रिपल तलाक को खत्म करो, फिर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। पर मैं कोर्ट्स के बारे में जरूर कहूंगी कि अवर कोर्ट्स हैव डन अ सुपर्ब जॉब। आप देखो, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, आर्टिकल 125 सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो हिंदूज मुस्लिम सब पे लागू होता है, इसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। पर जब तब की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू कुरान द मेंटेनेंस कैन बी गिवन इन फॉर ओनली 3 months टू अ मुस्लिम वुमन, और लॉ लेकर आ गए, उस समय कोर्ट चुप थी। पर 12 साल के बाद जब डेनियल लतीफी जो था, जो शाहबानो के लॉयर थे, वो कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये जो आपका लॉ है ना कि मुस्लिम महिला को सिर्फ 3 महीने के लिए मेंटेनेंस मिलेगी, ये गलत लॉ है। तो कोर्ट ने ब्यूटीफुली उसको पढ़ना चाहिए जजमेंट को, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ब्यूटीफुली इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि जो होली कुरान की आयत है, वो अगर कहती है कि 3 महीने तक मेंटेनेंस देनी चाहिए केवल, पर वो जो कहती है यू हैव टू गिव फेयर एंड रीजनेबल मेंटेनेंस विद इन दीज 3 months, यानी पूरी लाइफ लॉन्ग जितना पैसा चाहिए मुस्लिम महिला को उतनी आप मेंटेनेंस दीजिए, पूरी मेंटेनेंस दीजिए, पर तलाक के पहले 3 महीने में ही दे दो सारी मेंटेनेंस। तो ऐसे करके जो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार, दे हैव कम इन एड ऑफ द women of the country and all the deprived sections of the country। तो मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे, अभी आप देखिए 4 शादियां गई हैं, बाकी भी सब केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women has to go because it is against the constitutional trinity, against constitutional morality of article 14, 19, 21। और गोवा आप सब लोग जाते होंगे, गोवा में घूमने जाते होंगे, गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में, गोवा was not a part of India, गोवा 1961 में it became part of India। वहां पोर्चुगीज सिविल कोड चल रहा था क्योंकि पोर्चुगल गोवा पर रूल करता था, तो 1967 में यही अडॉप्ट किया गया। आज भी गोवा में वही पोर्चुगीज सिविल कोड चल रहा है। जब इंडिया का पार्ट बना तो इंडिया ने कहा आप हमारा आईपीसी सीआरपीसी लेना चाहते हो, तो नमस्ते कर दी गोवा ने, हम हमारे कानून में ठीक है। तो गोवा में जो पोर्चुगल सिविल कोड है, दैट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट डज नॉट हैव 4 marriages, it does not have talaq talaq talaq, it gives equal right of succession to Muslim man also and Muslim women also, and I think people are happier in Goa than in Delhi। तभी हम कहते हैं ना छुट्टियों में गोवा जाएंगे घूमने के लिए। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड in one line is any discrimination against women has to go, be it any religion। Thank you, ma'am. Perhaps the last question from a very bright student of Campus Law Center, Farooq, is coming in with a question, and that is for both Justice Ansari and Monica, ma'am. And that would be the last question for the day. Good evening, ma'am. So, ma'am, my question is in the context of Karnataka High Court, how do we categorize the dressing of an individual where women's clothes are consistently in a controversy?
Secondly, how do we interpret the natural rights of a citizen, particularly the right to choose the clothes, which are mentioned under various international human rights instruments? Ma'am, perhaps Justice Ansari can take the question if yes. Given a choice, I will say let Madam Monica take up this. Sir, after you, sir. No. Judges always have the last say. Okay, sir. Honestly, you are speaking Well- very well. Yes. So, what I heard and understood is right to choose your dress. है ना? मेरी मर्जी. अब ऐसा है कि यहाँ मर्जी चलती है. पहली बात, भारत में मर्जी चलती है कॉन्स्टिट्यूशन की. जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत होगी, कंप्लायंट होगी, वो तो चलेगी. जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होगी, वो नहीं चलेगी. नसू अप्पा माली की मर्जी की मैं तो और सुंदर और यंग स्त्री से शादी करना चाहूंगा, नहीं चलेगी, वो जेल में जाएगा. आज कोई तलाक 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 बोलेगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वो जेल में जाएगा. तो मर्जी चलेगी भारत के संविधान की. ये भारत ने 1950 में तय कर दिया था. We the people of India give to ourselves this constitution which ensures equality, liberty and dignity for all. ये हमारा प्रियम्बल है, ये हमारा ध्येय वाक्य है. अब इसमें अगर मैं कल को कोर्ट में जाऊं, मैं कोर्ट में कहूं मैं तो ये येलो कोट पहनूंगी, मैं ब्लैक कोट नहीं पहनूंगी, मैं तो अपना बैंड नहीं पहनूंगी. इट कांट बी. This is a dress code for particular places. यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर हिजाब पहनना है, पहला तो कौन कह रहा है? 17 साल, 16 साल, 15 साल की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, क्या वो खुद कह रही हैं या पेरेंट्स इनको कहला रहे हैं? और नर्सरी से लेकर वो 10th तक अगर स्कूल में आज तक हिजाब में नहीं आई, और सितंबर अक्टूबर में जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका जो कैंपस विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसने मेंबरशिप ड्राइव की और ब्रेन वॉश किया. उसके बाद सडन इरप्शन हो गया जिसमें FIRs भी लॉन्च्ड, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. तो क्या वो रियली अपनी चॉइस की बात कर रहे हैं? वो अगर फेसबुक पे पोस्ट जीन्स और ट्राउजर्स में, देयर फाइन. वो जीन्स में डाल रही हैं, घूम रही हैं, बिना हिजाब के घूम रही हैं. सडनली 2022 में क्या हो गया? वो कहते हैं हम तो हिजाब पहन कर ही आएंगे. तो क्या चॉइस है उनके पास, या उनको ब्रेन वॉश करके कंपल्सरीली जबरदस्ती की जा रही है? एक बात. दूसरी बात, हम जब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रेयर करते हैं घर में, कुछ भी पहन सकते हैं. हम फेस्टिवल से प्रेयर करते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं. भारत है, पाकिस्तान थोड़ा ना, या अरब कंट्री थोड़ा ना कि रोक देगा आपको. एक सेकुलर कंट्री है, एक सर्वधर्म संभाव कहते हैं. हम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, बखूबी कीजिए, आराम से कीजिए. पर जब आप पढ़ने के लिए एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन में जहां सबके लिए ड्रेस कोड है, तो वहां यू हैव टू अबाइड बाय द ड्रेस कोड. कौन सा जजमेंट था वो? केरला हाई कोर्ट का, फातिमा का जजमेंट था. वो लड़की कहती है मैं तो हिजाब पहन के आऊंगी, मैं तो फुल कपड़े पहन के आऊंगी, बाहें ढककर आऊंगी. तो कोर्ट ने क्या कहा कि भैया यू हैव अ फंडामेंटल राइट. वो एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन था. यू हैव फंडामेंटल राइट टू वेयर व्हाटएवर यू वांट. लेकिन ये जो लार्जर राइट है ऑफ द इंस्टीट्यूशन, योर इंडिविजुअल राइट हैज टू गिव वे टू दिस लार्जर राइट. You can take a transfer certificate. You have a number of religious institutions where they allow you to wear whatever you want and go and study. You take a transfer certificate, go and study there. But if you're coming in these institutions, you have to abide by their rules and regulations. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. आर्टिकल 25(2) कहता है state can regulate the secular activities, the social, religious, economic activities associated with religion. State can make laws to reform a religion in social interest, in public interest. तो
हम बात कर रहे हैं, बुर्के की तो बात ही नहीं है, बात है एक स्कूल क्या सबको कह सकता है सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है वही पहन कर आएंगे? इतना ही क्वेश्चन है, स्कूल का क्वेश्चन है। आप बाजार जाइए, आप पूजा करिए, आप नमाज पढ़िए, कौन रोक रहा है? मैंने कहा ना, ये अरब या पाकिस्तान नहीं जो रोकेगा आपको, कोई नहीं रोक रहा है यहाँ पर। और आज तक नहीं पहनते थे। फैज के केस में, आखिरी 1 मिनट, फैज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फैज वर्सेस आई थिंक यूनियन ऑफ इंडिया है वो केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो कहता मैं कांस्टेबल हूं केरला का, मैं कांस्टेबल हूं, और वो जब घर गया वो अपनी दाढ़ी बढ़ा कर आया। तो पुलिस के उसमें है कि आप ये सिंबल्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि नहीं, ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि मैं दाढ़ी रखूंगा। तो कोर्ट ने पहली बात कही, कोर्ट ने कहा जब आपने सर्विस ज्वाइन की थी, पुलिस सर्विस, क्लियरली कहा गया था कि कोई भी रिलीजियस सिंबल्स आप नहीं कर सकते क्योंकि सेंसिटिव पोस्ट में आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। Essential religious practice आपकी ये नहीं है to have a beard. Secondly, कुरान इसको मैंडेटरी प्रैक्टिस नहीं कहता है। थर्ड, अब तक 20 साल तो आपने रखी नहीं है, आज सडनली घर गए तो क्या हो गया? आ रहे हो कि मेरी essential religious practice हो गई? It cannot be. So either you have to get it removed or you have to, you can't come here with this. ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है फैज के केस में। तो लॉ इज वेल सेटल्ड, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस प्लस आर्टिकल 14, 19, 21 को एडहियर करोगे, और प्लस स्टेट कैन ऑलवेज रेगुलेट द सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ रिलीजन। थैंक यू जी सर।